سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے، جو کہ بہت زیادہ میرے خیال سے ہر کسی کو کیوریوسٹی بھی ہے اور جاننا چاہتے ہیں لوگ، کہ جب طالبان جو ہیں وہ کابل میں داخل ہوئے، آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے اندازے تھے کہ جی وہ ایک ہفتہ لگے گا، مہینہ لگے گا، سال لگے گا، اور دنیا حیران و پریشان ہو گئی جب وہ وہاں پہ آئے. تو ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے، اور ناظرین جو ہمارے جاننے والے ہیں، کہ یہ کیا ہو کیا رہا تھا وہاں پہ، کس طرح کی سچویشن تھی، کیا جو ہے ٹینشن تھی ماحول میں، ہم نے سنا خوف بھی تھا، بے یقینی بھی تھی، اور ذرا وہ پورا ہمیں منظر نامہ جو ہے منظر کشی کیجیے. اشرف غنی جب گئے، اس سے پہلے طالبان کیسے داخل ہوئے، کہاں تک پہنچے، تاکہ آنکھوں دیکھا حال ہم بھی سنیں اور ناظرین بھی دیکھیں. جی تھینک یو رضا. اینڈ فار ایکوریسی سیک میں یہ واضح کر دوں کہ مجھے اب چند روز ہو گئے ہیں واپس آئے کابل سے. پہلا صوبہ، اور میں اسی لیے اپنی ٹائم لائن پہ واپس جا کے ڈبل چیک کرنا چاہ رہی ہوں کہ پہلا صوبہ جو ہے وہ کب گرا تھا، کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ 10 دن کے اندر ہوا. پہلا جو پروونشل کیپٹل تھا نیمروز کا زرنج، وہ گرا تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ٹھیک ہے، امپورٹنٹ ہے، ٹریڈنگ روٹ ہے، ایران کے ساتھ ہے، لیکن ابھی یہ وہ والا اسٹریٹجک شہر نہیں ہے، یہ قندھار نہیں ہے، یہ مزار نہیں ہے، یہ ہرات نہیں ہے. تو اصل لڑائی ابھی باقی ہے. اور پوری دنیا کی طرح میں بھی اور میرے جتنے سورسز تھے وہ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ ان شہروں کے آس پاس لڑائی زیادہ ہوگی اور طالبان کو کابل تک پہنچنے میں وقت لگے گا. اس وقت ایک امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ بھی آئی تھی کہ جی نیٹو اور امریکی افواج کے نکلنے کے جو ہے 90 دن کے اندر اندر جو ہے وہ کابل کو طالبان سراؤنڈ کر لیں گے، یا 30 دن کے اندر اندر سراؤنڈ کر لیں گے اور 90 دن کے اندر اندر گرنے کا چانس ہے. اس ٹائپ کی کوئی رپورٹ تھی اور سارے سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت زیادہ مطلب جو ہے وہ بہت بڑھا چڑھا کے باتوں کو بیان کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. تو پہلا صوبہ گرا زرانج، ہم نے رپورٹنگ شروع کی کہ جی پہلا شہر، اور اس کے بعد پھر دھڑا دھڑ یکے بعد دیگرے شہر گرنا شروع ہو گئے. ہرات میں ہم نے اسماعیل خان کی وجہ سے تھوڑی سی لڑائی دیکھی، جنگ دیکھی، کیونکہ وہ خود کلاشنکوف اٹھا کے محاذ پر پہنچ گئے، ان کے ساتھی پہنچ گئے، اس سے شہر میں ایک ولولہ سا اٹھا، اور ٹویٹر پہ ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ واہ واہ بھی ہوئی، اور پورا افغانستان ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا. وہ ایک سمبل بن گئے ریزسٹنس کا، لیکن وہ بھی بہت زیادہ دیر تک نہیں چل سکا. اور ہرات کی لڑائی تو زرنج سے پہلے سے جاری تھی، لیکن پہلا جو شہر تھا وہ نیمروز کا جو پروونشل کیپٹل تھا. اب جو طالبان کابل کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، ایک کابل کے اندر انزائٹی اور جس کو کہتے ہیں نا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا. اور میرے کچھ مطلب سینئر سورسز تھے جو کہہ رہے تھے کہ ابھی تک اشرف غنی صاحب جو ہیں ہی از ڈریگنگ ہز فیٹ، وہ ٹف فیصلے نہیں کر رہے جو ان کو 6 مہینے پہلے کر لینے چاہیے تھے. وہ ابھی تک کنسلٹیشنز میں لگے ہوئے ہیں. مطلب ایک ایک صوبہ گرتا جا رہا تھا. جو ہے کیا کہتے ہیں دوستم کابل میں بیٹھے تھے، وہ میٹنگ کرنا چاہ رہے تھے، پیچھے ان کے شہر میں لڑائی ہو رہی تھی، پھر پتا چلا ان کے شہر پہ طالبان کا قبضہ ہو گیا. ایون کابل گرنے کے چند روز پہلے تک افغان صدارتی محل میں تمام دن میٹنگز چل رہی تھی. اور جو ہے کابل گرنے کے 2 یا 3 روز پہلے اشرف غنی نے ایک لائیو خطاب کیا تھا قوم سے، اور اس وقت پورے شہر میں یہ چمگوئیاں چل رہی تھی کہ یہ اب اعلان کریں گے کہ میں ریزائن کر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں. لیکن اشرف غنی انہوں نے یہ اعلان نہیں کیا. انہوں نے کہا جی میں کنسلٹ کر رہا ہوں، اور وہ جو میری کنسلٹیشنز ہوں گی اس کا نتیجہ میں آپ کو بتاؤں گا. اس وقت بھی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کی کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں کہ کس طرح کی جائیں گی. سو یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ صحافی تو ایک طرف، جو ایمبسیز تھیں، جو سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے ادارے تھے، جو افغانستان کی انٹیلیجنسیا تھی، وہ تمام ششدر رہ گئے، دنگ رہ گئے. اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ مجھے کہا جا رہا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وی او اے کا بھی یہ کہنا تھا، اور بہت سارے ادارے جو ہیں وہ اپنے جرنلسٹس کو
अपने लोगों को इवैक्यूएट कर रहे थे, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि अगर काबुल में लड़ाई शुरू हो गई तो एयरपोर्ट खुला रहेगा या बंद रहेगा। और सबसे ज्यादा मसला यही होता है, जैसा कि हमने देखा काबुल एयरपोर्ट पे, कि सबसे ज्यादा मसला ये होता है कि इवैक्यूएशन के या लोगों को निकालने के रास्ते बंद हो जाते हैं, एयरपोर्ट बंद हो जाता है अगर उसके आसपास लड़ाई हो रही हो, या जैसे हमने अभी काबुल एयरपोर्ट के बाहर देखा कि रश इतना बढ़ गया था कि लोगों को एयरपोर्ट तक पहुंचने में मुश्किल पेश आ रही थी। मैं कितनी ही फ्लाइट्स के बारे में जानती हूँ जो इवैक्यूएशन फ्लाइट्स या कैंसिल हुई या कम लोगों के साथ वहां से निकली, क्योंकि जिन लोगों को इवैक्यूएट करना था वो एयरपोर्ट तक पहुंच नहीं पाए। तो एक एक करके सुबह गिरता गया और इतनी तेजी से गिरा कि मतलब मैं किसी को कह रही थी कि माय हेड इज स्पिनिंग, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं डेट्स लिखना शुरू हो गई कि किस दिन कौन सा शहर गिरा है, और वो इतनी तेजी से गिर रहे थे कि वो आई वॉज टू फार बिहाइंड। मैं रोज सुबह उठती थी तो एक नया शहर गिर जाता था, और काबुल में ये हाल था क्योंकि काबुल में उससे पहले शहर के अंदर 2-3 धमाके हो चुके थे, ग्रीन जोन के बहुत पास और कंपाउंड्स के अंदर। तो काबुल में एक तो वैसे ही काम बहुत ज्यादा था, तो ऑब्वियसली सोने वोने का तो ज्यादा सीन नहीं होता, इस तरह आप 2-2 3-3 घंटे सोते हैं। रोज सुबह मेरी आंख जो है वो किसी झटके से खुलती थी। एक दिन मैं उठी, अब मैं सोच रही थी कि ब्लास्ट हुआ है, नहीं ब्लास्ट हुआ, फिर बाहर मैंने खिड़की से झांका तो देखा अच्छा लोग भाग नहीं रहे, तो इसका मतलब है ब्लास्ट नहीं हुआ, तो फिर पता चला कंस्ट्रक्शन हो रही थी। फिर ये कि रात में आपको स्पोरेडिक फायरिंग की आवाजें कहीं ना कहीं शहर के किसी हिस्से से आ रही होती हैं, तो आधी रात में आपको आपकी आंख खुल जाती है। फिर आप आधी रात को सोच रहे होते हैं कि ये जो फायरिंग की आवाज है ये कितनी दूर है, कितनी करीब है, इसके लिए आपको मतलब उठना और स्ट्रॉन्ग रूम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और ये सारे आपके दिमाग में ये सारे ख्यालात चल रहे होते हैं। सो हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, एंड इफ यू गाइस वांट टू आस्क मोर क्वेश्चंस अबाउट इट यू कैन आस्क लेटर। बहुत सारे लोग जो हैं काबुल में, अफगानिस्तान में जो रहते हैं, जिसमें हमारे भी बहुत सारे कॉलीग्स शामिल थे, उनके अक्सर उनके बीवी बच्चों के पास पासपोर्ट्स नहीं थे ना। मैंने अपने एक कॉलीग को कहा कि तुमने अप्लाई किया हुआ है पासपोर्ट, तुम सारे काम छोड़ो, तुम पासपोर्ट ऑफिस जाओ, अपने बीवी बच्चों के पासपोर्ट्स तो कम से कम तुम्हारे हाथ में होने चाहिए कि अगर तुम्हें निकालना पड़े तो यू शुड हैव द डॉक्यूमेंट्स। वो पासपोर्ट ऑफिस में था, मैं एक क्लिनिक में थी, अपना कोविड टेस्ट करा रही थी कि जस्ट इन केस अगले चंद दिनों में मुझे कोई फ्लाइट लेनी पड़े और क्लिनिक पता नहीं खुली रहे ना रहे, तो मेरे पास कोविड टेस्ट का रिजल्ट होना चाहिए। सो आई गॉट अ कॉल, मुझे टाइम याद है एग्जैक्टली, इतवार का दिन था, और 10:36 पे मुझे कॉल आई मेरे कॉलीग की, और मैंने ट्वीट भी उसको किया उस वक्त, और उसने, वो बहुत घबराया हुआ था, उसकी सांस फूली हुई थी, और उसने कहा कि आयशा दे हियर। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? अच्छा, उससे एक रात पहले तक हमें पता चल गया था कि मैदान वर्दक जो कि करीबी सूबा था वहां तालिबान पहुंच गए थे, मैदान शहर गिर चुका था। सो हमें अंदाजा था कि अगले चंद दिन में ये काबुल के इर्द गिर्द होंगे, लेकिन अभी भी बात चंद दिन पे थी, ये हफ्ते की रात की बात है। इतवार की सुबह उसने मुझे कॉल किया, उसने कहा आयशा दे हियर। मैंने कहा कहाँ? तो उसने कहा कि आउटस्कर्ट्स ऑफ काबुल पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थी जहां पे तालिबान लोगों को नजर आए थे और मैसेजेस फैले थे, और एकदम से पूरे शहर में, चंद मिनट के अंदर पूरे शहर में एक अफरा तफरी फैल गई। और बाय द टाइम उससे बात करके, ट्वीट करके, अपना कोविड टेस्ट करा के जब मैं बाहर निकली, तो पूरे शहर में मतलब लोग भाग रहे थे, गाड़ियां तेजी से जा रही थी, ट्रैफिक काबुल की वैसे ही मशहूर है कि हर वक्त ब्लॉक रहती है, खासतौर पे रश आवर्स में, तो वो इतनी पैनिक में लोग थे, वन वे के ऑपोजिट जा रहे थे और मतलब तेज गाड़ी चला रहे थे कि चंद मतलब आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा शहर ब्लॉक हो गया। तो मैं क्लिनिक से वॉक करके अपने गेस्ट हाउस पहुंची। ये वो अभी जमाना था जब काबुल में लड़कियां बगैर बुर्के और अबाए के वॉक कर सकती थी, तालिबान के आने से एक दिन पहले। मैं वॉक करके अपने गेस्ट हाउस तक पहुंची और रास्ते में मैंने ये देखा कि लोग बहुत घबराए हुए थे, तकरीबन भाग रहे थे, और जैसा कि मैंने कहा कि शहर बिल्कुल जैम हो चुका था, जिसको पहिया जाम कहते हैं, इस वजह से कि वो ट्रैफिक एकदम से पूरे शहर में तमाम दफातर, तमाम दुकानें, तमाम मॉल्स, तमाम क्लिनिक, सब कुछ बंद हो गया, और तमाम लोग अपनी गाड़ियों में बैठ के घर जाने की कोशिश कर रहे थे। तो पूरे शहर की आबादी एक साथ, जो के दफ्तरों में थी या घर से बाहर थी, एक साथ सड़कों पे निकल आई गाड़ियां लेके घर जाने के लिए। तो पूरा शहर जैम पैक हो गया, और उसके बाद पूरे दिन वो शहर
इस बुरी तरह ट्रैफिक फंसी कि वो तकरीबन शाम को 5-6 बजे तक शहर के ज्यादातर हिस्से ब्लॉक रहे, और फिर शाम को जो लोग घर पहुंचना शुरू हुए तो आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रैफिक कम। बाय द टाइम मैं अपने गेस्ट हाउस पहुंची, जहां पे और भी मीडिया था मेरे साथ, मतलब CNN की भी टीम थी, और भी एक लॉस एंजलिस टाइम्स का एक जर्नलिस्ट था, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थी जो मुख्तलिफ लोगों के लिए वो काम कर रही थी, तो और भी जर्नलिस्ट थे मेरे साथ गेस्ट हाउस में। तो बाय द टाइम मैं पहुंची तो तालिबान का एक मैसेज आ चुका था कि हम शहर के बाहर हैं, हमने शहर का मुहासरा कर रखा है, मगर हम शहर में दाखिल नहीं होंगे, हम पुरअमन पीसफुल तरीके से शहर का टेक ओवर करना चाहते हैं, हम नेगोशिएशंस के जरिए करेंगे। तो थोड़ी सी तसल्ली हुई कि अच्छा फौरन नहीं आ रहे, लेकिन फिर शाम तक ये बात जो है वो फैलना शुरू हो गई कि जितने भी चेक पोस्ट हैं और जितने सिक्योरिटी के पॉइंट्स हैं शहर में, उससे जो सिक्योरिटी के पुलिस हो या जो भी सिक्योरिटी ऑफिसर्स हो वो अपनी जगह छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो रात तक तालिबान का एक दूसरा मैसेज आया, उन्होंने कहा कि जी हमें ये इत्तला मिली है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अपनी पोस्ट अबैंडन कर रही हैं, छोड़ रही हैं, और इसकी वजह से शहर में लूटमार का खतरा है, तो हमने अपने फाइटर्स को कहा है कि आप शहर में एंटर होके सिक्योरिटी का इंतजाम संभाल लें। सो रात को वो लोग शहर में एंटर हो गए थे। अब सुबह अगले दिन द फर्स्ट डे अंडर द तालिबान, 15 को तो खबर आई थी, 16 को वाज द फर्स्ट डे इन काबुल अंडर तालिबान, जब तालिबान शहर में दाखिल हो चुके थे। और ये पीर का दिन था, ये पीर का दिन था। तो मैं और एक दो और जर्नलिस्ट हमने कहा, और मतलब मैं उस वक्त तक मेरे जो लोकल कॉलीग्स मेरे साथ काम करते हैं, दे हैड ऑल गॉन होम, उन सबको हमने कह दिया था आप घर से ना निकलें, क्योंकि लोकल मीडिया जो है उसके बारे में ये समझा जा रहा था बिकॉज ऑफ सम एविडेंस, क्योंकि टारगेटेड किलिंग्स बहुत हुई थी लोकल मीडिया की, और उनमें से ज्यादातर का इल्जाम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स भी और एम्बसीज भी तालिबान पर ही लगाती रही थी, और ये टारगेटेड किलिंग्स जो हैं ये दिसंबर और जनवरी के महीने में बहुत ज्यादा हुई थी। तो लोकल मीडिया ज्यादा अंडर थ्रेट था, और लोकल मीडिया को ट्विटर पे, फेसबुक पे, जिनमें हमारे कॉलीग्स भी कुछ शामिल थे, उनमें तालिबान के सपोर्टर्स की तरफ से धमकियां भी मिली थी। सो एज सून एज तालिबान एंटर्ड द सिटी, और जाहिर है कि जब आप टेलीविजन करते हैं आपका चेहरा जाना पहचाना होता है, तो वो सारे जो हैं वो लिटरली घरों में बैठ गए थे, और जो भी इफ दे कुड गो इनटू हाइडिंग, कोई रिश्तेदारों के पास या कुछ, तो दे हैड, बिकॉज किसी को अंदाजा नहीं था कि तालिबान जब शहर में दाखिल होंगे तो उनका रवैया क्या होगा। ये और बात है कि तालिबान ने वादे बहुत किए थे कि हम मीडिया को कुछ नहीं कहेंगे, हम जो है जर्नलिस्ट को काम करने देंगे, हम खवातीन को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक हिस्ट्री है पूरी, 90 की दहाई से शुरू होती है, 40 साल की हिस्ट्री है, उसमें लोगों को 90 की दहाई के वाकयात भी याद थे, फिर उसमें बीच की ये सारी टारगेटेड किलिंग्स और मीडिया पे अटैक भी लोगों को याद थे, और फिर उसमें ये बात भी थी कि इन पिछले 20 सालों की लड़ाई में जो इलाके तालिबान के कंट्रोल में रहे हैं या उनके इन्फ्लुएंस में रहे हैं, वहां से कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं आती रही कि वहां पे बड़ी आजादी सहाफत है और खवातीन बड़ी आजाद हैं। तो मतलब ये भी एक रिकॉर्ड था कि जी जो इलाके आपके कब्जे में थे वहां से। सो तालिबान का ये जो नया चेहरा जो कि वो कुछ अरसे से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दोहा में भी यही कहते रहे हैं, हमने उनसे जितनी दफा बात की ऑन द रिकॉर्ड कि जी हम इंसानी हुकूक को, शरिया के मुताबिक इंसानी हुकूक को पे बिलीव करते हैं और उन्हें वायलेट नहीं करेंगे, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि ये तालिबान का शरिया से क्या मुराद है, उनकी रेड लाइन कहाँ है, कौन सी चीज जो है वो रेड लाइन के इधर है और कौन सी चीज उधर है। तो इंस्टेंटली पूरे शहर ने अपने आप को घरों में बंद कर लिया, और एकदम से मतलब ओवरनाइट आप समझे कि काबुल जो है वो 20 साल पीछे चला गया। तो चंद दिन पहले का काबुल ये था कि आप अगर बाहर सड़कों पे निकलें तो आपको औरतें बच्चों का हाथ पकड़े शॉपिंग करने जाती नजर आती थी, आपको लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां ग्रुप्स में कैफेज पे बैठी नजर आती थी, आपको लड़के और लड़कियां और मर्द और खवातीन तमाम पार्क्स में नजर आते थे। और ये बात ठीक है कि सर पे दुपट्टा लेना या स्कार्फ लेना अफगानिस्तान के कल्चर में था, और खाली सर आपको कोई नजर नहीं आता था, लेकिन पूरा सर कवर नहीं होता था, स्कार्फ आधे सर पे होता था, बाल नजर आ रहे होते थे। लेकिन इंस्टेंटली मुझ समेत
اور میرے ساتھ جو اور فیمیل جرنلسٹ تھی, ہم سب نے فوراً ابائے پہن لیے, فوراً سر پہ فل کور کرنا شروع کر دیا, بیکاز ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ طالبان کی ریڈ لائنز کیا ہیں, اور اگر ہم باہر جاتے ہیں خالی سر پہ دوپٹہ لے کے اور بال اگر پورے نہیں چھپے ہوئے تو ہمیں کیا کوئی روکے گا تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا, بیکاز دا پوائنٹ از کہ یہ سارے کے سارے جو طالبان تھے یہ سڑکوں پہ AK-47 لے کے پھر رہے تھے. اب کلاشنکوف کسی کے ہاتھ میں ہو تو آپ اس سے زیادہ آرگیومنٹ نہیں کرنا چاہتے یا آپ اسے افینڈ نہیں کرنا چاہتے, بالکل نہیں کرنا چاہتے. ہاں, اور مطلب موٹر سائیکلوں پہ, مطلب لٹرلی جس کو میں کہتی ہوں کہ the speed and efficiency of the takeover not just of the country but of Kabul city was mind boggling. جس تیزی سے پیر کے دن صبح 2 گھنٹے کے اندر ہم نکلے ہیں تو ایک حال تھا, بائی دا ٹائم ہم واپس پہنچے تو دوسرا حال تھا, 2 سے 3 گھنٹے کے اندر جس طرح یہ لوگ ہر شہر کی گلی میں پھیلے ہیں اور ہر جگہ, مطلب لٹرلی لگا کہ افغان گورنمنٹ میلٹ ہو گئی ہے, اور ایک دم سے آپ کو ہر جگہ سیکیورٹی کی گاڑیوں میں, موٹر سائیکلوں میں, سڑکوں پہ چلتے ہوئے, پیدل, آپ کو ہر طرف طالبان نظر آ رہے تھے اور سب کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے, اور طالبان کے جھنڈے آپ کو, ایون افغان سیکیورٹی کی جو گاڑیاں تھیں اس پہ آپ کو طالبان کے جھنڈے نظر آ رہے تھے, اور ایک دم سے سڑکوں پہ ماحول بدل گیا. سو